Hey everyone, welcome to this video on system design of live comment system, the kind we see during live streams, online events और event collaborative platforms जैसे कि YouTube है, YouTube Live, Instagram Live और sports community platforms where like users can post the comment जो भी लाइव वीडियो देख रहे हैं उस पर वो अपना रिएक्शन दे सकते हैं एंड ऑल दी व्यूअर्स विच आर वॉचिंग दैट लाइव वीडियो उनको ये पोस्ट जो कमेंट है उनको रियल टाइम में व्यू होना. So here we'll see that how we are going to handle millions of comments per second ensuring the low latency कि यूज़र जो पोस्ट करता है कमेंट किसी भी लाइव स्ट्रीम पे एंड यूज़र को जो दिखता है इट सीम्स टू बी वेरी रियल टाइम, बहुत ही इंस्टेंट दिखता है वो यूज़र को. So how we are going to maintain the latency very low and still keep the system scalable, consistent. कंसिस्टेंट कहने का मतलब है कि जो भी यूजर कमेंट कर रहा है किसी भी स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम पे वो प्रॉपरली हमारे सर्विस में परसिस्ट करे एंड वो जितने भी व्यूअर है जो उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं वो सब उस कमेंट को देख पाए एंड क्रैश रेजिस्टेंट. So let's see what does it take to build a system like this. So let's get started. So now let's see the functional requirements. First is user authentication and authorization. That user is able to register and log in on our application and only authenticated user can post the comments. And role-based access control. We can have admin who can have access. Comment को edit या delete कर सकते हैं if that is abusive or anything. After we have posting comments that user is able to comment on the specific live video and user should able to view all the comments made by users on that specific live video and जो comments है वो real time में appear होने चाहिए. Next is comment history कि when a user joins an ongoing live stream तो जो भी past comments है वो user देख सके उसको. Then we have notification requirement कि user को जो है real time में notification update चला जाए जो भी उस live video को वो देख रहे हैं. Comment moderation that admins can delete or edit the comments. We can have rate limiting to prevent users from spamming. Now let's see the non-functional requirements. First is that the system should be scalable to support at least millions of concurrent users. Then is performance कि we want such a system बहुत ही कम latency में हम जो है broadcast कर पाए जो भी comment आ रहा है एक live video पे. Next is reliable and we want कि system should be secure and usability. We want a clean UI, no disruption in video or chat during the real-time updates. And next is maintainability. We want to build a system such that it's easy to maintain and extend in future. So now let's see the capacity estimation. Let's have like a rough idea कि कितना डाटा आने वाला है, कितना यूजर्स होने वाले हमारे इस एप्लीकेशन पे. सो इफ वी सी कि कमेंट्स पर सेकेंड लेट्स से कि 10,000 यूजर्स कर रहे हैं. सो साइज पर कमेंट लेट्स से कि 200 बाइट्स है. So if we see the total per second, it would be around 2 MB. So similarly, I have calculated for per day and per month, which is around 5 TB. So now let's see the database throughput. अगर हम write की बात करते हैं, let's say कि peak writes में we got around 10k comments per second. So our DB should support 10k writes operation per second. अगर हम read throughput देखें, so let's say कि we have 1 million concurrent users. So if each user fetches comments in every 5 seconds, so roughly estimated कि we have around 2 lakh read operations per second. So अगर on a very high level अगर हम requirement देखें, so we have a comment management service और हमारे पास users हैं. So user can post a comment to this service जो भी वो live stream live video देख रहे हैं and the service will persist this comment in DB. Let's say we have a database and हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो भी यूज़र कमेंट कर रहा है उस लाइव वीडियो पे लाइव स्ट्रीम आईडी पे जो भी बाकी यूज़र्स हैं उनको रियल टाइम में ये कमेंट व्यू हो जाए, रियल टाइम में अपीयर हो जाए उनकी स्क्रीन पे. सो बाकी यूज़र्स विल फेच द कमेंट live video ID. So basically this service will query on DB
to fetch the new comments, and it will return a list of comments. So if we see the API, we'll have a post API to make the comments on the live video ID जो भी user देख रहे हैं. So user can make the comment on any live video जो भी वो देख रहे हैं, and in response will return the status, comment ID and timestamp. So similarly we have get API to fetch the comments from a specific live video. यहाँ पे हमने ये API दे रखा है, and in response will return list of comments. So to fetch or query on DB we can use the offset based or cursor based. यहाँ पे ये cursor based मैंने API signature दे रखा है कि we want the 50 records after this timestamp, after this cursor. Similarly we have offset based as well, but here cursor based is suggested as we have high volume of comments in DB. Offset based में क्या होता है, here we have the live video ID comments, here we'll have offset, let's say कि 5 है and limit is same 50. So offset में क्या करेगा, ये फर्स्ट 4 टाइम्स जो 50-50 रिकॉर्ड्स लेके आ रहा है उसको डिस्कार्ड कर देगा, एंड नेक्स्ट टाइम जो 50 रिस्पॉन्स मिला है उसको यूजर को रिटर्न कर देगा ये API. मतलब कि जो 4 बार इन्होंने 50-50 रिस्पॉन्स 50-50 रिकॉर्ड्स निकाले हैं ये इसको डिस्कार्ड कर देगा, इसलिए ये काफ़ी स्लो होता है. एंड इट ऑल्सो इनकन्सिस्टेंट, अगर कोई न्यू कमेंट ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, क्योंकि जैसे ही ऐड या डिलीट होगा तो उसका ऑफसेट ही चेंज हो जाएगा, राइट वो रिकॉर्ड की नंबरिंग ही चेंज हो जाएगी, तो इट्स इनकंसिस्टेंट. एंड कर्सर बेस्ड क्वेरी जो होता है डीबी पे वो काफ़ी फास्ट होता है, एंड वी कैन ऑप्टिमाइज बाय क्रिएटिंग एन इंडेक्स. सो हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि यूज़र जो है पुराने पोस्ट को भी देख सकता है इफ़ दे स्क्रोल अप. सो वी कैन बिल्ड दिस API टू फेच द ओल्ड कमेंट्स एज वेल. सो ये आफ्टर टाइम स्टैम्प की जगह हम एक कर्सर बना सकते हैं बिफोर टाइम स्टैम्प, राइट. सिमिलरली बिफोर टाइम स्टैम्प से हम लिस्ट ऑफ कमेंट्स फेच कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं अपने टेबल से टू शो द ओल्ड कमेंट्स ऑन द स्पेसिफिक लाइव वीडियो आईडी. And to make system fast we can also have the cache here, which will store last 5-10 minutes or last 50 comments for a specific live video ID. So now let's see the core components is service के. So we have authentication service which is responsible for handling user login and sign up. And हमारे पास एक live video service है जिससे user जो है live video देख रहा है. And here we have a comment gateway which is responsible for forwarding the request to the comment service. So comment service we can have a rate limiter here which enforces per user rate to prevent the abuse. And here we can have a moderation service जहाँ पे admins को access है कि वो comments को edit या delete कर सकते हैं. And here will persist all the comments जो भी user comment करेंगे on a specific live video ID. So यहाँ पे हमारे पास comment ID है एंड यूज़र आईडी एंड लाइव वीडियो आईडी कि किस यूज़र ने किस लाइव पे क्या कमेंट करा है, राइट, एट व्हाट टाइम. एंड देन वी हैव अ नोटिफिकेशन सिस्टम विच पुशेस द कमेंट्स इन रियल टाइम टू द यूजर्स. सो वी सॉ द कैपेसिटी एस्टिमेशन एंड स्कीमा कि जो भी हम कमेंट्स यूज़र कर रहे हैं उसको परसिस्ट करने वाले हैं. सो बेस्ड ऑन दैट आई वुड से कैसेंड्रा इज़ अ गुड चॉइस टू स्टोर द कमेंट्स. लाइक वी कैलकुलेटेड कि अराउंड 10 के राइट्स होने वाले हैं एंड अराउंड मिलियंस ऑफ कंकरेंट यूजर्स होंगे एक स्ट्रीम पे जिनको व्यू करना है, रीड करना है ऑल दी कमेंट्स. सो कैसेंड्रा इज़ अ गुड चॉइस इन दैट सिनेरियो. एंड अगर हम नेस्टेड कमेंट्स देंगे तो हेयर वी कैन हैव लाइक पेरेंट कमेंट आईडी वगैरह कि अगर नेस्टेड कमेंट है तो किस पेरेंट कमेंट को वो बिलोंग करता है. अगर ऐसा कुछ फीचर इंटरव्यूअर आस्क कर रहा है तो वी कैन हैव अदर पैरामीटर लाइक इज़ डिलीटेड और इज़ एडिटेड करके कि अगर एडमिन को हम अलाउ कर रहे हैं एडिट वगैरह करना. सो वी कैन हैव सच पैरामीटर्स एज वेल. सो हम चाहते क्या है कि जब भी कोई यूज़र नया कमेंट करे ऑन अ स्पेसिफिक लाइव स्ट्रीम तो हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र्स उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे उनको रियल टाइम में वो नोटिफिकेशन चला जाए, वो कमेंट अपीयर हो जाए इन वेरी रियल टाइम, बहुत ही लो लेटेंसी के साथ. सो वी थॉट कि विल हैव अ कर्सर बेस्ड क्वेरिंग API जो कि DB पे क्वेरी करेगा ऑन दैट स्पेसिफिक लाइव वीडियो और हर एक 5 सेकंड या 10 सेकंड में वो पोल करेगा एंड विल गेट अ लिस्ट ऑफ कमेंट्स ऑन दैट स्पेसिफिक लाइव स्ट्रीम. बट जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे वो काफ़ी लोड बढ़ जाएगा एंड ये काफ़ी स्लो हो जाएगा. सो वी कैन से कि हम इंडेक्सिंग कर लेंगे टू मेक फास्ट कि लाइव वीडियो ID टाइम स्टैम्प पे हमने इंडेक्सिंग कर दिया
या वी आर यूजिंग कैसेंड्रा और डायनामो डीबी भी यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन में। वी कैन से कि हम शार्ड कर सकते हैं, बट व्हाट एल्स वी कैन डू टू ऑप्टिमाइज इट। So now let's understand that how we are going to ensure that the comments are broadcasted in real time to all the users who are watching that live video. So हमने सोचा था कि जो भी users हैं they'll basically poll from the server in every 5 second या long polling कर लेगा and will get a list of comments उस live video पे। बट ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल अप्रोच नहीं है, राइट? सो वट वी कैन थिंक ऑफ कि लेट्स हैव अ वेब सॉकेट कनेक्शन, क्योंकि वेब सॉकेट कनेक्शन क्या करता है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर। सो वेब सॉकेट में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है, यूजर विल ओपन अ कनेक्शन टू सर्वर, एक वेब सॉकेट कनेक्शन ओपन करेगा एंड ये जो कनेक्शन है ओपन रहेगा। नाउ क्लाइंट कैन सेंड अ डाटा टू सर्वर एंड इट कैन रिसीव्स द डाटा विदाउट रिक्वायरिंग एनी एडिशनल रिक्वेस्ट। तो सर्वर से हमारे पास रियल टाइम में जो भी कमेंट्स आएगा उस लाइव वीडियो आईडी पे रियल टाइम पे फेच कर सकते हैं हम। लेकिन हमारे इस यूज़ केस में किसी भी मोमेंट पे मोस्टली या मैक्सिमम कह सकते हैं कि 1% ही यूज़र्स ऐसे होंगे जो कि कमेंट पोस्ट करेंगे। 98 to 99% जो यूज़र्स हैं वो सिर्फ व्यूअर्स होंगे। सो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि क्या वेब सॉकेट की सच में नीड है, क्योंकि वी आर सेइंग कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ फेच कर रहे होंगे, हम कुछ पोस्ट तो कर नहीं रहे हैं। सो इफ वी सी द प्रोज ऑफ यूजिंग वेब सॉकेट, सो इट्स बाय डायरेक्शन, सर्वर क्लाइंट को और क्लाइंट सर्वर को जो है डाटा भेज सकता है एंड काफ़ी लो लेटेंसी होती है, रियल टाइम में प्रोसेस हो जाता है। एंड इफ वी सी द कॉन्स, वी रिक्वायर्स कनेक्शन मैनेजमेंट, कि यूज़र जो क्लाइंट है सर्वर के बीच में वेब सॉकेट कनेक्शन सही है या रिकनेक्ट की नीड तो नहीं है। एंड डू वी रियली रिक्वायर्ड वेब सॉकेट टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वेब सॉकेट जो होता है टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ हमें चैट बनाना हो, रियल टाइम गेमिंग करना हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कम्युनिकेशन है वो सर्वर से यूज़र इसी वे में रहने वाला है। जो इसका अदर वे है यूज़र से सर्वर के बीच में, वो ओनली 1% है। तो हम किसी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते कि ये 1% है तो इसको एपीआई बेस्ड ही रहने देते हैं। जब भी यूज़र पोस्ट करेगा सो विल हिट द सर्वर एंड हम परसिस्ट कर लेंगे उस कमेंट को। एंड ये जो वे है इसको किसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके कि सर्वर से जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट है, वो रियल टाइम में यूज़र को पुश कर सके नोटिफिकेशन। सो वी हैव सर्वर सेंट इवेंट्स। इसमें क्या होता है कि सर्वर कैन डायरेक्टली pushes the update to the client via HTTP, एंड ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि जो सर्वर है वो डायरेक्टली यूज़र को, क्लाइंट को जो है डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। सो जो SSE है इट वर्क्स ओवर HTTP एंड इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट देन वेब सॉकेट। सो जो हमारा सेकेंड यूज़ केस था कि 99% जो है हमारे सिस्टम में किसी भी मोमेंट में वो सिर्फ व्यूअर्स होने वाले हैं। सो वी वांटेड कि सर्वर जो है डायरेक्टली पुश कर दे जो भी अपडेट आ रहा है, जो भी कमेंट्स आ रहा है उस लाइव वीडियो पे। सो जो SSE है ये काफ़ी फिट बैठता है इस यूज़ केस के लिए। सो इफ़ वी सी दी प्रोज, इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड बिल्ट इन रिकनेक्शन एंड रिट्राई, ऑटोमेटिकली रिट्राई और रिकनेक्ट कर लेता है एंड वर्क्स ओवर HTTP, कोई हमें एक्स्ट्रा इंफ्रा की नीड नहीं होती है। एंड इफ वी सी दी कॉन्स कि ये यूनिडायरेक्शनल है, लाइक वेब सॉकेट बाई डायरेक्शनल था, तो एक एडवांटेज था कि अगर किसी क्लाइंट को, किसी यूज़र को भी अगर कुछ रिक्वेस्ट भेजना है सो वी कैन सेंड ओवर द सेम चैनल, सेम कनेक्शन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज लाइट वेट एंड एफिशिएंट, तो ये कौन सी ये प्रोज है तो इसको काट देते हैं, ये यहाँ आना चाहिए। एंड लिमिटेड ब्राउजर सपोर्ट एंड नॉट सुटेबल फॉर मोबाइल ऐप्स और बाइनरी डाटा। मोबाइल ओएस क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है बैकग्राउंड सर्विसेज को टू कंजर्व द बैटरी, क्योंकि SSE में क्या होगा कि क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट बना लिया, नाउ सर्वर कैन सेंड दी पुश दी डाटा, तो मोबाइल ओएस क्या करता है, ऐसा कोई भी बैकग्राउंड में अगर सर्विस चल रही है तो उसको किल कर देता है। नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्केल आवर सर्विसेज टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। सो हमने अभी तक समझा है कि वी हैव अ सर्विस जहाँ पे जो है यूज़र पोस्ट कर सकता है कमेंट को एंड विल परसिस्ट दैट कमेंट इन अ DB, और जैसे ही हमारे पास कोई कमेंट आता है विल सेंड दैट अपडेट्स नोटिफिकेशन टू यूज़र ओवर SSE, सर्वर सेंट इवेंट्स। सो अगर हम स्केल की बात करें टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ यूज़र्स, तो हम कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर लेते, राइट, कि हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हो। लेकिन ऐसा करने से एक इशू अराइज हो जाता है कि लेट्स से कि यूज़र A जो है वो सर्वर 1 से कनेक्टेड था और यूज़र B जो है वो सर्वर 2 से कनेक्टेड था, और यूज़र A ने कोई कमेंट करा, तो जितने यूज़र्स इस सर्वर से कनेक्टेड होंगे उनको तो अपडेट इंस्टेंट चला जाएगा,
लेकिन जो यूजर्स किसी और सर्वर से कनेक्टेड होंगे उनको कैसे अपडेट जाएगा, क्योंकि सर्वर 1 को तो आइडिया ही नहीं है कि यूजर जो है सर्वर 2 पे देख रहे हैं, तो उनका जो अपडेट है वो मिस हो जाएगा। सो हाउ वी आर मेकिंग इंश्योर कि जब भी कोई नया कमेंट पोस्ट हो वो सारे यूजर्स को इंस्टेंटली अपीयर हो जाए। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट वी कैन डू कि ये जो हम पोस्ट सर्विस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल स्केल कर रहे थे टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, हम क्या करेंगे कि विल हैव एक और सर्विस, लेट्स से रियल टाइम नोटिफिकेशन सर्विस, एंड हम पबसम मॉडल यूज कर लेंगे कि जब भी यूजर कोई नया कमेंट कर रहा है तो हम उसको परसिस्ट कर लेंगे एंड विल सेंड this notification to this service, and this service will notify to all the users who are watching the same live stream. So here we have defined this basic PubSub model. So what we are thinking कि here we have a comment service, right? कि user जो है comment कर सकता है, will persist in a DB and will publish this update on a topic and will have a real-time processing notification system. ये इस टॉपिक को लिसन कर रहा होगा एंड इट विल मेंटेन अ मैप, इसको पता होगा कि अगर ये लाइव वीडियो आईडी है तो इससे कौन कौन से जो है यूज़र कनेक्शन आईडी, कौन एक लिस्ट ऑफ बेसिकली यूज़र कनेक्शन आईडी होगा कि इस लाइव वीडियो आईडी से कौन कौन से यूज़र्स जो है बेसिकली वॉच कर रहे हैं, ये उन उन यूज़र्स को नोटिफाई कर देगा रियल टाइम में जो भी कमेंट आया है। बट इससे प्रॉब्लम यही है कि यूज़र किसी भी लाइव वीडियो पे अगर कमेंट करे तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन सिस्टम है इस पे सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि वो जो नोटिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके पास यूज़र्स है भी उस लाइव वीडियो के लिए या नहीं है, उसके लिए सबके पास आएगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट लाइव वीडियो वो फेच करेगा कि कौन कौन से यूज़र्स हैं एंड उसको वो रिटर्न करेगा। यहाँ पे जू कीपर टाइप हम कुछ रख सकते हैं विच विल मेंटेन दिस मैपिंग कि उस लाइव वीडियो से कौन कौन से यूज़र कनेक्शन आईडी लिंक है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जैसे हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सर्वर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, ऐसे ही हम मल्टीपल टॉपिक्स बना लेते हैं, टॉपिक को भी शार्ड कर देते हैं। तो जिससे होगा क्या कि इंस्टेड ऑफ वन टॉपिक सारे के सारे कमेंट राउट हो, हम उसको शार्ड कर देंगे जिससे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है पबसम मॉडल उसको हम पार्टीशन वे में यूज़ कर सकते हैं कि लेट्स से वी हैव n इंस्टेंसेस, तो हम n टॉपिक्स बना लेते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये है कमेंट सर्विस, वी हैव n इंस्टेंसेस, सिमिलरली वी हैव रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम एंड हमारे पास यहाँ पे n टॉपिक्स होंगे। तो जब भी कोई यूज़र किसी स्ट्रीम को देख रहा है तो हम उसका हैश कैलकुलेट करेंगे, जो भी वो लाइव वीडियो देख रहा है, लाइव वीडियो आईडी लेट्स से मॉडुलस, अगर हमारे पास n इंस्टेंसेस है तो वो उस सर्वर से कनेक्ट होके वीडियो देख रहा है। तो जब भी वो यूज़र कोई कमेंट करेगा सो विल कैलकुलेट द हैश अगेन सेम हैश फंक्शन से एंड विल पब्लिश दैट डाटा ऑन द सेम टॉपिक, एंड जो भी यूजर्स उस लाइव वीडियो को देख रहे हैं वो सब उस सेम सर्वर से कनेक्टेड होंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम से, एंड जो रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम है वो उन सारे यूजर्स को नोटिफाई कर देगा रियल टाइम में। Here I have given the step-by-step explanation. So user will post the comment via the normal route HTTP post request and service will persist the data in DB ताकि हमें बाद में कभी query करना हो, बाद में fetch करना हो, so we can fetch that details from the database. And then service will publish the comments to the partition topics कि हमने multiple channels multiple topics create कर लिए हैं, and we have an instance of real time message notification service as well जो कि उन्होंने अपने अपने टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर रखा है। And now whenever a user make any comment to on any live video, so we'll calculate the hash and उस hash के अकॉर्डिंग जो सर्विस होगा वो उस चैनल उस टॉपिक पे पब्लिश कर देगा कमेंट को। And this real time message notification service have the idea कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो कि उस लाइव वीडियो को देख रहे हैं and sends the comment to users using SSE. So here you can go through this information. So server will maintain a mapping कि जो भी यूजर्स कौन कौन से लाइव वीडियो को देख रहे हैं and regarding SSE connection related information, ताकि जब हमारे पास कमेंट आए तो हम यूजर्स को कमेंट सेंड कर पाए। So to maintain the mapping we can maintain it in memory
using concurrent has map, and for distributed systems like we can use the cache like Redis to store the mapping. So why this technique is useful? It avoids sending all comments to all the servers. Hence it will reduce the system load by partitioning the traffic. So ये जो है faster technique होगा instead of having a simple pub/sub model. बट इसका डिसएडवांटेज यही होगा क्योंकि हम लाइव वीडियो आईडी पे हैशिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोड्स को, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि ऐसे लाइव वीडियोस जो कि बहुत वायरल है वो सेम सर्वर पे आ जाए, कि लेट्स से यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है और कोई लाइव इवेंट भी चल रहा है विच इज़ वेरी वायरल, तो ऐसा हो सकता है कि अगर सेम सर्वर पे ही हो तो वो हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अप्रोच इज़ कि हम डिस्पैचर बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि डिस्पैचर सर्विस को पता है कि कौन कौन से यूज़र्स इस लाइव वीडियो आईडी को देख रहे हैं। सो होगा क्या कि जब भी यूज़र कोई लाइव वीडियो को देख रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, सो डिस्पैचर सर्विस को पता होगा, बेसिकली डिस्पैचर सर्विस विल हैव द आइडिया कि कौन कौन से यूज़र जो है इस लाइव वीडियो आईडी को देख रहे हैं। सो वेन एवर अ यूज़र मेक्स एनी कमेंट ऑन अ पर्टिकुलर लाइव वीडियो आईडी, तो जो हमारा रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम है वो इस डिस्पैचर सर्विस से पूछ लेगा कि इस लाइव वीडियो आईडी को कौन कौन से यूज़र आईडी देख रहे हैं, यूज़र आईडी का कनेक्शन है। तो डायरेक्टली जो है हमारा रियल टाइम नोटिफिकेशन सिस्टम उन यूज़र्स को रियल टाइम में अपडेट पुश कर देगा। We can think of this dispatcher service as a traffic controller, I would say, and this dispatcher has idea basically कि इस सर्वर पे कौन कौन से viewers हैं for this live video. So it will maintain a real time mapping live video ID के corresponding list of user ID connection. बट इसमें चैलेंजिंग यही होगा कि हम वो मैपिंग कितना एक्यूरेटली बना पा रहे हैं, क्योंकि यूज़र अगर लेट्स से कि लाइव वीडियो आईडी 1 पे था, उसने स्विच कर लिया दूसरे लाइव स्ट्रीम पे, सो हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दैट रियल टाइम मैपिंग, जो भी यूज़र जिस सर्वर पे वो मैप देख रहा है, सॉरी लाइव स्ट्रीम देख रहा है। सो दैट इज़ द चैलेंज हेयर।